Hello friends, welcome to this video on averages brought to you by CLAT Gurukul. You can have access to many such videos on our website www.clatgurukul.com. Just in case if you have any feedback and suggestions, we kindly request you to call us on 82943-94519. This topic of his average is of critical importance with respect to almost all the competitive exams like CLAT, AILET, SET, MHCET and various other examinations. So I would suggest you to have a strong grip on this particular topic. Now before we really get started, let me first introduce you with the kind of courses that we offer. इसमें सबसे पहला है हमारा क्लासरूम प्रोग्राम. इस क्लासरूम प्रोग्राम्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज विच आर फाउंडेशन 2 years का प्रोग्राम है. टारगेट इज अ 1 year प्रोग्राम. क्रैश कोर्स इज ऑफ 3 months and 1 month डिपेंडिंग ऑन चॉइसेस ऑफ स्टूडेंट्स. Then there is a correspondence program as well. Correspondence program में हमारा mock test series है which is very sought after. Then we also offer a DLP program wherein we provide you with 15 modules, study modules along with the mock test series. So these are the kind of courses that we offer. For mock test you can visit our website www.clatgurukul.com/exam and you can subscribe it here itself. Now let's start with this simple question. What is average? So average is defined as calculated central value of a set of numbers. So यहाँ पे point to be noted is calculated, यानी आपको calculate करना है, central value calculate करना है of set of numbers. We'll understand this definition by help of an example. So example के पहले हम लोग सबसे पहले बता दें कि average का definition क्या है. Average is sum of all observations divided by the number of observations. So suppose हमारे पास 3 numbers हैं 2, 7 and 9. So 2 यहाँ first observation हुआ, 7 is the second observation, 9 is the third observation. Now when you add the all the observation हमारा value मिल जाएगा 18. Now you divide it by total number of observations, यानी आपने 18 को 3 से divide किया, the result comes out to be 6. So 6 is the average of the set of numbers 2, 7 and 9. अब यहाँ एक पॉइंट नोट करने के लिए है कि 6 जो है वो सेट ऑफ नंबर में फॉल नहीं करता है. ये एक इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव नंबर है. यानी अगर आप 2, 7, 9 को प्लॉट करेंगे लाइन ग्राफ पे, 2, 9 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू तो एक्सट्रीम राइट में आएगा, देन 7 विल कम समवेयर हियर एंड द एवरेज इज ऑल टुगेदर डिफरेंट विच इज 6. Now 6 is the representative value. एक पॉइंट यहाँ पे है कि 6 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा और लार्जेस्ट नंबर से छोटा, यानी it moves towards the center. That is why it's called the central value. We'll solve some questions on averages in this video, but before we start to solve these questions, आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की लिस्ट को नोट कर लीजिए. इसमें एवरेज वाला फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया है, इसके अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव दीज 2 फार्मूलाज विच टॉक अबाउट एवरेज स्पीड. सो इसमें थोड़ा टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लग जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पे ये फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे. 2 केसेस हैं इस फार्मूला में. एक है व्हेन डिस्टेंस इज डिवाइडेड इन 2 equal halves, तो इसका फॉर्मूला 2xy by x plus y है. एंड व्हेन द टाइम इज डिवाइडेड इन 2 equal halves, तो उसका फॉर्मूला x plus y by 2 है. इसका जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा. Now the third formula is weighted average. Again it's an application oriented formula. We'll discuss it in one of the questions. Now let us start with our first question, which is what is the average of all prime numbers between 30 and 50. तो इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए 30 and 50 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं. मेरा सिंसियर एडवाइस आपको रहेगा कि 1 to 100 जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको आप लिख के याद कर लें, क्योंकि इसकी प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत आपको रीजनिंग में जब सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उसमें काफी जरूरत पड़ेगी. So to solve this question, let us first identify the list of prime numbers. So first prime number is 31, the second prime number is 37, third is 41, then is 43,
एंड इज 47। सो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। एवरेज का फॉर्मूला हमारा कहता है कि यू ऐड ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, तो इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने ऐड कर दिया एंड देन यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे यहाँ 5 हैं। सो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 199 डिवाइडेड बाय 5 और यानी ये आ जाएगा 39.8। सो 39.8 इज द एवरेज ऑफ all the prime numbers between 30 and 50. It's a simple question. Now let us move on to the next question, which asks you about find the average of first 10 multiples of 7. तो यहाँ पे आपको 7 का टेबल याद रहना चाहिए। 7 के टेबल के सारे मल्टीपल्स जो है हम लोग सबसे पहले लिख लें। सो विच ऑल आर द मल्टीपल्स? पहला मल्टीपल है 7, देन इज 14, 28, 42, 49, 56, 63 and 70. So these are all the prime numbers, all the multiples of 7. We have noted them down. आप यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो सीरीज में हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस हम लोग नोट कर सकते हैं कि सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस 7 है। यानी जो भी जितने मल्टीपल्स होते हैं वो सारे अगर आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो वो एपी में फॉल करते हैं। सो इस केस में हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स वी ऐड देम अप, सबको ऐड करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो 385 आएगा ऐड करने के बाद से। सो 385 को आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 से डिवाइड करेंगे, सो एवरेज हमारा हो जाएगा 38.5। नाउ इसको जो एपी में जो एपी की सीरीज होती है उसमें नंबर्स को ऐड करने का एक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इन एपी निकालने का एक फॉर्मूला भी है जो कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो यहाँ पे n का वैल्यू है 10/2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म हमारा है 7 और लास्ट टर्म है हमारा 70। So this becomes 5 into 77, 5 into 77 हमारा हो जाता है 385। Now ये हमारा यानी एवरेज जो है सम ऑफ इन टर्म्स हमने निकाल दिया। अब इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज जो है वो 38.5 आ जाएगा। एक इसकी सिंपलर ट्रिक भी है कि अगर आप सीरीज में नंबर्स को लिखते हैं और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड होता है तो जो मिडिल वैल्यू होता है वो एवरेज होता है या मीन होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होते हैं तो दो उसमें मिडिल टर्म्स हो जाते हैं। जैसे इस हमारे केस में चूंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है तो मिडिल टर्म्स इसमें 35 और 42 हुए। सो अगर आप 35 और 42 का सिंपल एवरेज ले लेंगे तो वो भी 38.5 आएगा। तो जो भी अगर आपको एवरेज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का निकालना है तो आप सिंपली जो मिडिल टर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें। अगर वो मिडिल टर्म एक ही मिडिल टर्म है तो वो एवरेज हो जाएगा। अगर दो मिडिल टर्म्स हैं तो उन दो मिडिल टर्म्स का जो सिंपल एवरेज है वो हमारा पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज हो जाएगा। Moving to the next question, which says the average of 4 consecutive numbers is 24. Find the largest number. अब consecutive odd numbers के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2 का डिफरेंस होता है। तो हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। अब चूंकि ये सारे odd numbers हैं तो इस odd numbers हैं और टोटल 4 वैल्यूज हैं तो odd numbers हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, एपी में होंगे और इनका मिडिल टर्म 2 हो जाएगा। सो इन मिडिल टर्म्स का एवरेज जो है वो 24 है। इन मिडिल टर्म्स का एवरेज मैंने अभी बताया कि एपी में जो नंबर्स होते हैं उनका मिडिल टर्म्स का एवरेज जो है वो पूरे एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज होता है। सो उस हिसाब से 24 बिकम्स द एवरेज। नाउ
the smaller number will be of course 23 because 24 is not an odd number. So 23 is an odd number and the other number will be 25 जिनका एवरेज जो है वो 24 हो जाएगा. So इस सीरीज के हमने दो नंबर्स लिख लिए 23 एंड 25. तीसरा हमारा नंबर हो गया 21 और चौथा हमारा जो लास्ट नंबर है वो हो गया 27. यानी हमारा एपी का जो लार्जेस्ट नंबर है वो 27 होगा. सो 27 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 0. एट मोस्ट हाउ मेनी नंबर्स कैन बी ग्रेटर देन 0. तो अगर एवरेज 0 है इसका मतलब सम टोटल जो है 0 है. और चूंकि 10 नंबर्स हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारा 10 है, यानी एवरेज इज इक्वल टू 0 अपॉन 10 विच इज 0. अब गौर करने की बात है कि सम टोटल 0 कब होगा. ये उस केस में हो सकता है कि अगर हमारे 9 नंबर्स जो हैं वो निगेटिव हुए. हमारे पास निगेटिव टोटल 9 नंबर्स हैं लेकिन 10वां नंबर जो है वो पॉजिटिव है, 10th नंबर जो है वो पॉजिटिव है. लेकिन इस 10th नंबर का सम बाकी सारे निगेटिव नंबर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है. तब ये एड अप करके 0 हो जाएंगे और जब आप उनको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज 0 मिलेगा. सो एट मैक्स 9 numbers can be negative. So 9 will be the answer. Now next question is find the average of all numbers between 6 and 34 which are divisible by 5. यानी 5 के मल्टीपल्स होंगे. So वो नंबर्स कौन से हो जाएंगे? हो जाएगा 10, 15, 20, 25 and 30. So हमारे पास 5 नंबर्स हो गए. ये पांचों नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मिडिल टर्म जो है हमारा एवरेज हो जाएगा. So 20 will be the answer. Now next question, it says average age of boys in a class is 16 years and average age of girls in a class is 15 years. What is the average age of all? अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिसेप्टिव है. यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में वो आप नहीं जानते हैं. सो व्हेन यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप उनका एवरेज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए एवरेज आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. एवरेज क्या होता है? इट इज सम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो चूंकि यहाँ पे हम लोग को n का वैल्यू नहीं पता है, दैट इज व्हाई वी वोंट बी एबल टू बी इन अ पोजीशन टू कंप्यूट द एवरेज ऑफ age of the student. So the correct answer out here will be can't be determined. Next question, ये क्वेश्चन कहता है कि a library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 visitor on other days. मतलब बाकी के सारे दिन पे 240 ही विजिट करते हैं, संडे को लेकिन 510 लोग विजिट करते हैं. So what is the average number of visitors in a month of 30 days starting with Sunday? Now starting with Sunday is important. क्यों important है? क्योंकि अगर आप काउंट करेंगे the number of Sundays in a month starting with Sunday तो वो उसका वैल्यू होगा 5, यानी 5 संडेज हो गए और अदर डेज जो है वो हो गए 25. सो 5 संडेज हो गए, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडेज हो गया 510 into 5 और 25 अदर डेज हो गए तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हो गया 25 into 240. नाउ यू एड द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज 30. सो दिस कम्स आउट टू बी 8550 डिवाइडेड बाय 30. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 285. सो द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स विल बी 285. अब देखिए ये वेटेड एवरेज का भी क्वेश्चन है. यहाँ पे एवरेज किसका निकालना है? विजिटर्स का. तो यहाँ पे 510 x1 हो जाएगा, 240 x2 हो जाएगा. उनका वेट्स क्या है? मतलब द नंबर ऑफ डेज आउट हियर विल बी द वेट्स. सो W1 हो जाएगा 5 एंड W2 हो जाएगा 25 और ये 30 क्या हो जाएगा? ये हो गया W1 प्लस W2. सो वेटेड एवरेज क्या है? ये एवरेज का ही एक मैनिफेस्टेशन है. ऑल टुगेदर कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, एवरेज वाले फॉर्मूले से ही ये भी डिराइव होता है. Now this question says a class of 25 students took a science test. 10 students had an average score of 80 and the other students had an average score of 60. तो 10 का एवरेज क्या है? 80 है. तो इनका सम टोटल क्या हो गया? 10 into 80.
बाकी बचे कितने 15 का एवरेज क्या है 60, तो सम टोटल कितना हो गया 15 इंटू 60, तो इनका पूरे क्लास का सम टोटल कितना हो गया 10 इंटू 80 प्लस 15 इंटू 60, द होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 25. दिस कम्स आउट टू बी 1700 डिवाइडेड बाई 25, जिसका आंसर आ जाएगा आपका 68. So 68 will be the average. Now this question is has got a little bit concept of time, speed and distance, although it asks you about the average speed. Question क्या कहता है देख लीजिए. Animesh Jha drives half the distance at 60 kmph. Now the point to be noted, it's talking about half the distance at 60 kmph and remaining half at 40 kmph. What is the average speed of the entire trip? So ये क्वेश्चन जो है हाफ द डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें पहला वाला फॉर्मूला लगेगा. यानी कौन सा फॉर्मूला? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy बाई x प्लस वाई. सो यहाँ पे 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 60, y का वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40 विच इज 100. सो दिस बिकम्स 4800 divided by 100 which is 48. So average speed will be 48 in this case. Now the second related question, it says if Animesh drives half the time at a speed of 65 kmph and remaining half at speed of 80 kmph. So इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला what is his average speed, यहाँ पे average speed का दूसरा वाला फॉर्मूला applicable हो जाएगा which is x plus y by 2. x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू इज 65, y का वैल्यू हो गया 80 डिवाइडेड बाय 2 यानी 145 डिवाइडेड बाय 2 which is 72.5 and the average speed will be 72.5. So this was all regarding the concept part of averages. We'll be coming up with a further video wherein we'll be discussing more questions on averages. In the meantime, what you can do is you can like us on Facebook. You can also join our CLAT discussion forum at CLAT Insight. Visit this particular website. I'll also suggest you to subscribe our channel, like it, and press the bell icon for any further notifications. Thank you.